नमस्कार। Shall we start, sir? शुरू करेंगे सर। हाँ, जी 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 जी। तब थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिलकर बात करता है सर। हाँ चलेगा, सब चलेगा, सब चलेगा। We cordially invite and welcome our Honorable Education Minister Shri Ramesh Pokhriyal ji Nishank ji for the inaugural function of Boys and Girls Hostel, both 100-seater, each constructed at Mizoram University. And the two projects were being inaugurated today are Boys and Girls Hostels, namely Torang Hall of Residence Boys and Jamjo Hall of Residence Girls, were started in construction in the year 2017 March and completed in the month of August 2019, sir. Within the time we have completed, sir, and available for utility. The funding was provided by MHRD through EGC and sanctioned an amount of rupees 19 crores 40 lakhs. On this occasion, we thank the Honorable Education Minister for liberal sanction of the grants for the construction of boys and girls at Mizoram University, as we have the need of more boys and girls hostels, as the existing accommodation is not sufficient and it is only sufficient for 1,000 students in the campus. Mizoram University once again thank the Honorable Education Minister and all the officers of Mizoram Minister of Education for their generosity in the development of educational institutions in the country and providing a great leadership for all the institutions in the country. During the pandemic situation also, we appreciate the Honorable Minister for his excellent guidance for all the institutes throughout the pandemic situation. We are grateful to you, sir. The building design, tendering and execution of the works was done through the development of university engineering cell. Both the hostels were designed at double-bedded rooms, and the two hostels have a total capacity of 200 units, and both the hostels are fully equipped with electrical fittings and furniture. Each hostel has attached warden room, kitchen, dining hall and common room. With these two new hostels in place, we hope that a severe shortage of housing for the students in the campus shall be alleviated to a great extent. These hostels will surely provide peaceful accommodation and environment conducive to learning for the students, especially for those who have come from remote areas of the region, of this region in Mizoram and other parts of the country. Sir, with these few remarks, we thank you very much for your kind gesture in providing liberal grant of hostel construction, and also several hostels are also being sanctioned through HEPA, sir. They are under consideration, and 4 more hostels we got sanction हो गया. ये लोग HEPA फाइनल फेज में है सर, बैंगलोर को भेज दिया. ये लोग आने वाला है. ये लोग आएगा तो हमको हॉस्टल का प्रॉब्लम तो निकल जाता है सर. मिजोरम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा फैसिलिटीज मिलता है सर, and we will be doing very good in this area. And last 6 months pandemic situation, we have completed all final year examinations, sir. Online examination we have conducted, and we have started the classes also through online. And all the student undergraduate courses also online examination कर रहे हैं सर. सभी 100% online examination कर रहे हैं सर. पूरा आपका गाइडेंस में पूरा आप क्या बोल रहे हैं ऐसी कंप्लीट किया सर. And we are the only university in the whole country who have completed online examinations, and blended mode also we have offered, sir. And classes also, August 1st onwards we have started the classes, and we are regularly conducting classes, sir. And in the last 4 months, 200 webinars conduct किया sir. पूरा देश में कोई यूनिवर्सिटी नहीं किया सर. 200 webinars कर दिया, and more than 150 foreigner professors know they have given lectures in our university, sir. And we are very much academically committed, and all our faculty, non-teaching staff and officers are doing very excellent work, and they are doing very good, and we will be definitely going towards the better ranking. We already got 67th rank in the country, sir. North East में दो में आ गया था, 2-3 में आ गया था सर. पूरा इंडिया में 50 को बिलो आ जाएगा सर. नेक्स्ट 2 years में आपको बहुत अच्छा नाम देता है सर.
Thank you, sir. Sir, we will go for inauguration, sir. We will show the building and plan, sir. आप inauguration करेगा तो आपका बारे में हम करेंगे, sir. मेरे प्रतिनिधि हैं आप। कैमरा फोकस चेंज करना, सर. सर आपको देखता है, सर? जी जी जी। करना है, सर? हाँ हाँ दिख रहा है। आपका बारे में कर रहे हैं, सर. ओके ओके। Sir, these are the two hostels, sir. This is boys' hostel, sir. This one is boys' hostel, sir. Boys' hostel, Peter Mount, sir. And this is girls' hostel, sir. Back side. ओके। Both the hostels are बहुत completed, अच्छा। sir. वेरी गुड। Thanks. We request Honorable Mantri ji to give his message, sir. Namaskar, sir. मिजोरम विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर KRS संभाशिव राव जी, पीबीसी प्रोफेसर JK पटनायक जी, परीक्षा नियंत्रक, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, निदेशक CDC और अन्य सभी संकाय और प्रोफेसर, विभाग अध्यक्ष, सभी कर्मी, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर दो भवनों का अलग प्रकार से आज लोकार्पण हो रहा है। मुझे जब मैं मिजोरम विश्वविद्यालय को पढ़ता हूँ तो मुझे खुशी होती है, मुझे आशा का संचार भी होता है और मुझको लगता है कि जो हिमालय है, हिमालय की बहुत ऊंचाइयां हैं, उस हिमालय की धवलता भी बहुत है, साफ सुथरा। हिमालय ने हमेशा पूरी दुनिया का संरक्षण किया है। हिमालय वो पर्यावरण की भी पहली पाठशाला रहा है। आपने ग्रीन, आपकी पूरा परिसर, आपने ग्रीन परिसर बनाए, मुझे खुशी होती है क्योंकि ये जो हिमालय है वो पर्यावरण की संरक्षण की पहली पाठशाला है। ये हिमालय विविध ज्ञानों की, परंपराओं की शक्ति स्थली है। ये हिमालय में जड़ी बूटियां भी हैं, वनौषधियां भी हैं, यहाँ ऑक्सीजन भी हम देश और दुनिया को देते हैं। इसलिए हिमालय का पानी और हिमालय की जवानी पूरे देश में, पूरी दुनिया के काम आती है, पूरी दुनिया के काम में आती है। हिमालय का पानी भी, जवानी भी, पर्यावरण भी। और आज ये मिजोरम विश्वविद्यालय देश के 1000 विश्वविद्यालय में 67 वाले स्थान पर है और मुझे भरोसा है कि क्योंकि यहाँ 1000 यूनिवर्सिटी है, 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख यहाँ स्कूल हैं और 1 करोड़ 9 लाख अध्यापक हैं और 33 करोड़ 33 करोड़ छात्र छात्रे अमेरिका की जनसंख्या से भी ज्यादा हिंदुस्तान में है, केवल छात्र छात्र हैं। ये इस देश का ये वैभव है और आगे 25 वर्षों तक यंग इंडिया रहने वाला है। यंग इंडिया दुनिया में कुछ भी कर सकता है।
और इसलिए ये जो मिजोरम के लोग हैं, मैं जानता हूँ बहुत ताकतवर है, विजनरी हैं, ईमानदार हैं, निष्ठावान हैं, मेहनती हैं। ये पहाड़ मेहनती होता है हमेशा। मैं जब अभी ग्रीन बोनस की देख रहा था तो मुझे याद आता है जब मैं चीफ मिनिस्टर था उत्तराखंड का, तब हम लोग हिमालय के सभी हिमालय के चीफ मिनिस्टरों का एक कॉन्क्लेव हुआ था शिमला, हिमाचल प्रदेश में। तब बहुत सारी पर्वतीय क्षेत्र की राज्यों की समस्याओं के बारे में बात आई थी। तब मुझे याद है कि हमने ग्रीन बोनस की बात उठाई थी उस समय प्रधानमंत्री जी के साथ, कि जो हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय के वासी हैं, ये वनों का संरक्षण करते हैं। ये देश को जवानी भी, देश को पानी भी, देश को प्राणवायु भी देते हैं, और इसलिए इनकी रक्षा सुरक्षा जरूरी है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पूरे हिमालय क्षेत्र के विश्वविद्यालय में मिजोरम टॉप स्थान पर जा रहा है। मैं बधाई शुभकामना दे रहा हूँ आपको और आपकी मुझे भरोसा है कि आप इसी तरीके से मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपके लिए नई शिक्षा नीति लेकर के आई हैं। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये इस देश को 21वीं सदी के हिंदुस्तान को ताकतवर हिंदुस्तान बनाएगी। ये पूरी दुनिया के ज्ञान का महाशक्ति होगा, नॉलेज पावर होगी दुनिया की हिंदुस्तान, मेरा देश, और वो इन्हीं विश्वविद्यालयों से चल करके आगे बढ़ेगा। अब मैं छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ कि कितनी खूबसूरती है, आप स्वतंत्र हैं, कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी विषय को ले सकते हैं। आप साइंस के साथ आर्ट्स ले सकते हैं, आप इंजीनियरिंग के साथ संगीत ले सकते हैं, जो चाहे आप लीजिए, आप अपनी मर्जी के राजा हैं। आप कुछ भी लीजिए, लेकिन लीजिए। फिर राजा को ताकत के साथ दौड़ना होता है, अपने अस्तित्व को कायम करने के लिए अपने को साबित करना होता है, और इसलिए पूरा मैदान आपके लिए खाली है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। अब हमने तो ये भी तय कर दिया कि जहां आपको सब्जेक्ट चुनने की पूरी छूट होगी, वहीं यदि कोई बीच में भी छोड़ करके जा रहा है परिस्थिति वश, यदि किसी की परेशानी में बीच में ही छोड़ करके जाना पड़ रहा है, तो वो जो समय है उसका 1 साल का या 2 साल का, वो खराब नहीं जाएगा। यदि 1 साल में छोड़ के जा रहा है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में छोड़ के जा रहा है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में छोड़ के जा रहा है तो डिग्री मिलेगी। और यदि वो बीच में भी आना चाहता है और दोबारा अपना करियर को और बढ़ाना चाहता है, तो जहां से उसने छोड़ा है, हम एक क्रेडिट बैंक बना रहे हैं। ऐसा क्रेडिट बैंक जो आपके सारे उस बैंक में जमा होगा, जब चाहे आप जैसे बैंक से निकालते हैं उसका उपयोग करते हैं, ऐसे उस क्रेडिट बैंक से यदि बीच में भी आप छोड़ करके चले गए, तो जहां पर आपने छोड़ा है उसी क्रेडिट से आप आगे शुरू कर सकते हैं, बेरोक टोक आप कर सकते हैं। ये हम इंटरनेशनल इसका विश्व स्तर की शिक्षा नीति को लेकर के आए हैं, लेकिन ये भारत केंद्रित भी होगी। जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे गौरव हैं, जो हमारी ख्यातियां हैं, जो हमारी जैसे अब मिजोरम प्रदेश कितना वैभवशाली प्रदेश है, जो उसकी उसकी परंपराएं हैं, उसकी जो मान्यताएं हैं, जो उसकी संपदाएं हैं, प्राकृतिक संपदाएं, उन पर भी हमको शोध करना है। उनको शोध करके मेरे मिजोरम के मुख्यमंत्री से मैं कल कह रहा था कि मिजोरम बहुत खूबसूरत है, और मुख्यमंत्री भी यंग मुख्यमंत्री है और बहुत मेहनत करता है। ये मिजोरम के लोगों को लगना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी उसका भविष्य है, ये यूनिवर्सिटी मिजोरम का भाग्य है। उसको मिजोरम गवर्नमेंट को जब भी कोई प्लान बनाना हो तो मेरी यूनिवर्सिटी के किसी छात्र से पूछ करके, किसी संकाय अध्यक्ष से पूछकर प्लान बनना चाहिए, ताकि उस राज्य का हम उभार सके, बढ़ा सके, राज्य को विकसित कर सके। और यही हमको करना है। हमको मिजोरम को बहुत अच्छा ले करके जाना है, और मिजोरम के छात्र को देश में ही नहीं पूरी दुनिया में लेकर के जाना है।
उसके विजन को। जो मिजोरम का जो छात्र है वो बहुत मेहनती छात्र है। वो मिजोरम के लोग बहुत ईमानदार लोग हैं। पहाड़, जैसे मैंने कहा, पहाड़ और हिमालय बहुत साफ तरीके का रहता है। और हिमालय हमेशा, जब भी दुनिया का कोई आदमी भटका है, हताशा, निराशा, कुहासा से होकर गुजरा है, तब तक वो हिमालय में आता है, एक नया जीवन लेके जाता है। ये हिमालय की ताकत है। तो जो हिमालय की ताकत है उसको दूसरों के देने के लिए है, लेकिन दूसरे को तब देंगे, पहले अपनी ताकत को संजो करके हमको रखना पड़ेगा, उसको और अच्छे से तरीके से उभारना पड़ेगा। और ये विश्वविद्यालय निश्चित रूप में इसका केंद्र होगा, मुझे ऐसा भरोसा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एक नए भारत का निर्माण चाहिए, ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, जो स्वस्थ भारत हो, जो सशक्त भारत हो, जो समृद्ध भारत हो, जो आत्मनिर्भर भारत हो, जो श्रेष्ठ भारत हो, जो एक भारत हो, श्रेष्ठ भारत। ये श्रेष्ठ, हम तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे देश के अंदर थे, जहाँ सारी दुनिया के लोग ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान के लिए भारत की धरती पर आते थे। हमारे सुश्रुत शल्य चिकित्सा का जनक इस धरती पर पैदा होता है। आयुर्वेद कहने वाला भी चरक ऋषि का जन्म भी हिंदुस्तान की धरती पर होता है, जिस आयुर्वेद में इन जड़ी बूटियां जो हमारे हिमालय में जो संजीवनी जड़ी बूटियां हैं, उनको लेकर के मनुष्य की रक्षा करने का ज्ञान है। हमारा योग, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब दुनिया के इस मानव को सुरक्षित रखने के लिए योग का सूत्र दिया कि ये जो भगवान की सबसे सुंदरतम कृति ये मनुष्य है, ये बहुत अच्छे तरीके से रहे, तो योग तन और मन को ठीक करने वाला योग, ये जो योग है वो पतंजलि भी इसी धरती पर योग का जो जन्मदाता है, जिस पर आज दुनिया के 199 देश आज योग को कर रहे हैं। विश्व योग दिवस मना करके सारे लोग अपने स्वास्थ्य के लिए योग को ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो चाहे भाषा विज्ञान का जो पाणिनि है, भाषा विज्ञान का भी जो जन्मदाता है, वो भी इसी धरती पर रहता है। परमाणु पर काम करने वाले आचार्य कणा भी यहीं पर पैदा हुए। शून्य और गणित जैसे स्थान को देने वाले आर्यभट्ट भी यहीं पैदा हुए हैं। और जो तमाम, जिन्होंने तमाम विधाओं में गणित से लेकर के और ज्योतिष विज्ञान में काम करा, ऐसे भास्कराचार्य विख्यात वैज्ञानिक भी हमारी हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए हैं। और इसलिए जो हमारा पीछे के जो हमारे वैज्ञानिक थे, जो हमारा अतीत था, उसको हम वर्तमान में जोड़कर हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये इंडियन भी होगी, ये इंटरनेशनल भी होगी, ये इंटरैक्टिव भी होगी, ये इम्पैक्टफुल भी होगी, ये इंक्लूसिव भी होगी। ये भारतीय भी है, अंतरराष्ट्रीय भी है, ये संवादपूर्ण भी है, तो ये प्रभावशाली भी है, और ये सबको साथ लेकर के समावेशी भी है। कोई छूटना नहीं चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। और इसलिए इसमें इक्विटी, समानता भी है, क्वालिटी, उत्कृष्टता भी है, और एक्सेस, पहुंच भी है। अंतिम छोर तक के बच्चे तक हम पहुंचना चाहते हैं। आपको मालूम है कि NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ताकि हम शोध और अनुसंधान कर सकें, इसका भी गठन किया जा रहा है। आपको मालूम है कि यहाँ पर हम नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का भी गठन कर रहे हैं, ताकि टेक्नोलॉजी नीचे तक जाए, उसका उपयोग हम करें। और किसी तरीके से इसमें पेटेंट भी होगा, पेटेंट भी होगा, अपने चीज हो गया हमारा, हमको पेटेंट भी करना है। हमारे कंटेंट भी अपने होंगे तो हमारे पेटेंट भी अपना होगा। और इसलिए ये जो लोकल की मैंने बात की, ये लोकल भी होगी, ये ग्लोबल भी होगी। लोकल से ग्लोबल तक जाएगी ये शिक्षा नीति, और यही मेरा छात्र लेके जाएगा। इसमें लोकस भी होगा, इसमें फोकस भी होगा, इसमें टैलेंट भी होगा, पेटेंट भी होगा, इसमें कंटेंट भी होगा, रिलेवेंट भी होगा। और इसलिए ये टैलेंट को विकसित करने के साथ उसके विस्तार को भी करेगी। ये शिक्षा नीति पहली है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम स्कूली शिक्षा से पढ़ाएंगे। हम लोगों ने ये तय कर दिया कि जो स्वायत्तता है, जो डिग्री कॉलेज की स्वायत्तता है, मुझे खुशी है कि NAC में भी आपको अच्छा वो दिया है,
और आप जैसे मेहनत राव कर रहे हैं, संभाशिव राव खूब मेहनत कर रहे हैं पूरी टीम के साथ। मुझे मालूम है, मैं लगातार अपने विश्वविद्यालयों की समीक्षा करता रहता हूँ और सब विश्वविद्यालय कहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं, मैं निरंतर इस बात को बहुत चौकसी के साथ देखता रहता हूँ। तो मुझे खुशी है कि आपकी लीडरशिप में ये विश्वविद्यालय बहुत आगे जा रहा है, अच्छा जा रहा है। हम पूरा मदद करेंगे आपको, हम पूरा सपोर्ट देंगे। आप आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, पूरा बढ़ाइए। आप पूरे देश का एक अलग से मिजोरम यूनिवर्सिटी का नाम बढ़ाइए। तो मेरी शुभकामनाएं आपको कि आप आज जो ये शुरू हुआ है आपका दो भवन है, और जो आपने कहा है कि हिपा में आपके जो प्रस्ताव लंबित होंगे, आप ये हिमालय के लोगों के लिए तो हमारा दिल भी हिमालय की तरह है। आप आगे बढ़ाइए, आप और आगे बढ़ाइए, इस मिशन को आगे बढ़ाइए। मैं मिजोरम के मुख्यमंत्री को और मिजोरम की जनता को मैं बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि मिजोरम जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, और मुझे भरोसा है कि ये मिजोरम मेरा केंद्रीय विश्वविद्यालय ये मिजोरम की शान बनेगा, पूरे देश के अंदर उसकी गरिमा को बढ़ाएगा। मैं एक बार पुनः आप सबको बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, formal vote of thanks by our registrar, honorable registrar, sir. सर एक ही रिक्वेस्ट करेंगे सर आपको। सर मिजोरम में बहुत साल से 20 साल से एक ड्रीम है सर, रुगले कैंपस, अनदर साउदर्न कैंपस ऑफ मिजोरम सर। 20 साल से पूछ रहे सर, हम इसको अप्रूव किया सर, आप अप्रूव किया था ये कैंपस के लिए। थोड़ा जल्दी करेंगे तो आपका हाथ से इसको इनाग्रेट करेंगे तो हमारा बेंगलुरु में हो जाएगा, तो हमको बहुत खुशी होता है सर। रुगले कैंपस को आपको थोड़ा कंसिडर करके आपको इसको रुगले कैंपस को देना है। साधारण कैंपस सर आप अप्रूव किया सर, आप अप्रूव किया था, इसको थोड़ा रुगले कैंपस को देगा तो मिजोरम को ड्रीम आता है सर, पूरा चीफ मिनिस्टर सभी को ड्रीम है सर ये। थैंक यू। जरूर जरूर जरूर। Honorable Minister of Education, Sri Ramesh Pokhriyal Nissank, and respected Vice Chancellor of Mizoram University, Professor K.R.S. Sambasiva Rao, and all others fraternity of the university, it is my privilege to propose a vote of thanks on this very important occasion. I, on behalf of the Vice Chancellor of Mizoram University and Mizoram University fraternity, and on my behalf, I extend a very hearty vote of thanks to our Honorable Education Minister, Sir Sri Ramesh Pokhriyal Nissank. Thank you so much, sir. We recognize your initiatives and making yourself available for inaugurating 2 halls of residence of Mizoram University. Thank you so much, sir, that your concern and initiative for the growth and development of higher education in the country as a whole is really admired and put in record, especially throughout this COVID-19 pandemic situation. I do extend my heartfelt thanks to the Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, and all the university statutory officers, deans of schools and heads of departments and other officers for their presence in this very memorable occasion. Lastly but not the least, I extend my heartfelt thanks to NIC personnel from Delhi and Mizoram for their valuable support and arrangement along with the University ICT Center for the successful organization of this very function, and also all the staff of Mizoram University for all necessary arrangement. Thank you all. Thank you, sir.